A very gracious welcome to each and every one of you. Distinguished Reverend Sister Sibi, the local manager and directress, respected Principal Reverend Sister Jees Maria, dear staff and teachers, and my dear students, welcome back to St. Mary's School, Porbandar, in this new academic year 2021-22. At last, this beautiful day has arrived. I'm sure you all have been eagerly waiting for this great day. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this morning a blessed one, invoke God by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings of the Almighty, I invite our directress, Reverend Sister Sibi, and our admirable principal, Reverend Sister Jees Maria, to lit the lamp. Education is the passport to the future and is the most powerful weapon we can use to change the world. The person who has consumed herself to change the society and to illumine the lives of students, the principal of St. Mary's School, Reverend Sister Jees Maria, is requested to address the audience. Welcome back to the new academic year to my dear students, teachers, and parents. I know that previous academic year had been full of challenges, full of learning, and full of explorations. All of us, including students, teachers, and parents, we progressed and learned on a modern platform with a new design and with a new venture that we could successfully sail through with the cooperation and support of everyone, especially with the supreme power of God Almighty. It's my pleasure to welcome the new teachers and students. Dear ones, from today onwards, we will travel together to conquer the highest tops of genuine learning to fulfill our ever-cherished dreams. Dear students, I invite you all to the enriching and motivating online learning possibility at home. With 100% sincerity, make use of the golden opportunity with determination and faithfulness. And my request to the parents is that support and strengthen your child mentally, physically, and emotionally to face the challenges of this present scenario with hope, courage, and faith. Like last year, we will be conducting various online competitions to develop our students' abilities, capabilities, and talents. Dear parents, encourage them to participate in all the activities without thinking about winning or losing. Instead, focus on their all-around development and character formation. Dear teachers, enkindle the fire within you and empower yourselves to impart the true knowledge to our students. Once again, recall the motto of our school, be light to light others. Imploring God's blessings and graces, let us ask Him to fill us with the divine knowledge and wisdom. Thus, we may enlighten the minds of our children who are entrusted to our care. Finally, all the best wishes to have a wonderful, happy, and successful academic year of enriching learning journey. May God bless us all. Thank you, dear sister, for your enlightened words. Offering the whole world
especially our teachers, students, and parents. Let's join with Reverend Sister Sibi, the directress of our school, and Miss Vyas Falguni, and seek the blessings of the Almighty to grace our school and this new academic year. इस सुप्रभात में परमेश्वर के सामने शांत मन से स्वस्थ दिल से हम बैठेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कोविड-19 के बीच में हम आपके वत्सल बच्चे इस नए एकेडमिक ईयर के पहले दिन धन्यवाद भरे दिल से आपके श्री चरणों में आ गए हैं। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। अक्षर ज्ञान से ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करके जिंदगी में गरिमा प्राप्त करने के लिए सहारा देने वाला और इसके लिए अपना तन मन लगाकर मदद करने वाला हमारे प्रिय माता पिताओं के प्यार और ख्याल के लिए हमें हे ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन सफर में हमेशा संरक्षण प्रदान कीजिए, आपके छत्र छाया में सुरक्षित कीजिए, महामारियों से इन्हें बचा लीजिए। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, उसे हासिल करने के लिए हमें तैयार करने वाला सभी गुरुजनों को सभी स्टूडेंट्स की ओर से सादर प्रणाम। बच्चों के अंदर जो छिपे हुए मोतियां हैं उन्हें ढूंढकर सच्चा मोती निकालने वाला हे हमारे डियर टीचर्स, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स का ब्लेसिंग ले लीजिए। गॉड ब्लेस यू। हम अपने देश के सभी विद्यार्थियों के लिए अभी प्रार्थना करें कि वे सबको भी प्रभु अपनी आँखों के सामने रखें और कोविड-19 महामारी से और उनकी डर से सबको हे प्रभु आपका अनुग्रह करने वाला हाथ बैठाकर संभालिए और अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रभु आज आप सबसे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी, तुम्हारे सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। मैं तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई में बाधा डालने वाला टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, बैड फ्रेंडशिप, ये सबसे दूर रहिए। हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है जो हमारी सहायता करता है और हमारे लिए युद्ध करता है। आप जहाँ भी हो, प्रभु तुम्हारे कामों को, पढ़ाई को विजय प्रदान करेगा। बच्चों, परमेश्वर प्रेममयी है। वह कहता है, मैंने तुम्हें मेरा हथेली में अंकित किया है। इस 2021 साल के लिए तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना बनाया है। वह तुम्हारे नाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भलाई के लिए है। पढ़ाई कितनी भी कठिन होने पर भी डरो मत, भरोसा प्रभु पर रखो। ईश्वर हम हर एक से पूछता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार करने में असमर्थ है? डियर वंस, पैंडेमिक हमारे घर के निकट नहीं आएगा क्योंकि
प्रभु हमारे आगे और पीछे रहकर हमें संभालते हैं, आंखों की पुतली की तरफ रक्षा करते हैं। इस नए एकेडमिक ईयर में हमारी विचारधाराओं को और सपनाओं को जानकर हमारे साथ रखिए प्रभु, सहारा दीजिए प्रभु, जीवन सफल बनाइए प्रभु। कि हमारे पेट्रोनस सेंट मैरी, हम सेंट मेरियंस आपके बच्चे हैं। पूज्य माँ, इस साल के पढ़ाई को, सभी चैलेंजेस को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ऑनलाइन के सहारे शुरू करने वाला अपने पढ़ाई को देखकर हमारे साथ रहिए हे माँ। अच्छी तरह पढ़ने, समझने और याद करने की आशीर्वाद दीजिए। कोविड-19 से हमें और पूरे परिवार को, सारे देश को और सारी दुनिया को सुरक्षित कीजिए। स्टूडेंट्स, बड़ों को आदर करो, उनके आशीर्वाद से ही जिंदगी सफल बनेगा। परमेश्वर के चरणों पर प्रणाम करो, माता पिता का ब्लेसिंग लो। हम पूरे सेंट मेरीज के टीचर्स आपको आशीर्वाद देकर हमेशा आपके साथ हैं। यस डियर वंस, इस नया साल में जो नया ज्ञान प्राप्त करेगा वह हमारे लिए नया ज्योति बनेगा। इस शुभारंभ में हमें ऐसा प्रार्थना करते हैं कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम,
हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। On this beautiful day, let us have an inspiring reopening day message by an eminent educationalist, Shri Sandeep Soni, the Education Inspector of Porbandar District. Good morning, respected Principal Ma'am, teachers, parents and students of one of the esteemed schools in Porbandar, that is Saint Mary School Porbandar. So today when we are talking about and we are preparing about the new academic year, new academic calendar, so I am asked to share with you some of my thoughts and interact with you. It's my pleasure to be with you here today. Friends, during this pandemic, this COVID times, we have faced a lot of things. The schools, the regular classes were not be able to done. So in that case, online classes are the only option. So now we are ready for the digital classes. And when we are ready for these online classes, because the education should continue, it should not stop. So there are various options for online learning, and in this situation I would like to share you a few things which may be helpful. So मैं जो बताना चाहता हूँ वो पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स सबके लिए एक कॉमन बात है. देयर इज़ वन वर्ड, चेंज. एवरीबडी नोज दिस वर्ड चेंज. चेंज इज़ इटर्नल. हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति है वो सेम रहने वाली नहीं है, वो बदलती रहेगी. तो बदलाव है, चेंज है, उसके साथ हमको अडेप्ट होना है. देयर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ कॉल्ड अडेप्ट. आप लोगों ने डार्विन का नाम सुना होगा. सो उनकी जो थियोरी है उसके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसके साथ हमको भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है. जैसे पहले ऐसा था कि स्कूल में जाके ही पढ़ सकते हैं. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ education or learning can happen through online mode also. Your teachers can be with you through online modes. You can also learn several things. There are many things available on internet. So positive aspects are there. So you have to be adaptive in that case. Now I am going to share with you a comparison of two students. There is a student called A. Now this student is very good in academics, topper. He scores above 90 marks. He is very hardworking, very good in academics. And he has got admission maybe after 12th in a very good reputed institutes. Then he IITs or IIMs, so very high in IQ. He is very high in IQ, that is intelligent quotient. Now after some years of study, he gets a job, and but he is very low. He is very low in EQ. Now I will tell you difference. What is IQ and what is EQ? So intelligent quotient. Intelligent quotient is it doesn't mean if you are having good in IQ and if you doesn't have emotional quotient, that is emotional intelligence. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. हमारे पास IQ है लेकिन EQ नहीं है, इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है.
तो हमारे लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जा रहे हैं रास्ते में, आप साइकिल या बाइक लेके जा रहे हैं, सामने किसी के साथ आपकी टक्कर हो गई और फॉल्ट सामने वाले का है आपका है, लेकिन आप गुस्से हो गए, वो भी गुस्सा हो गया एंड फाइट हो गया। सो अगर आप दोनों EQ लेस है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है तो आप सोचेंगे कि क्या कारण है कि उसकी गलती थी कि मेरी गलती थी। आप दोनों अपने आप को सॉरी कह के आगे जा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे आप घर पे होंगे तो काफ़ी टाइम पे ऐसा होगा कि छोटी छोटी बात में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज पॉपकॉर्न, फट जाते हैं तुरंत। तो ये सब चीज़ों में भी EQ जरूरी है। EQ मीन्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज EQ। तो EQ इज अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एज वेल एज अदर्स इमोशंस, दैट इज कॉल्ड EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप पढ़े, कोविड के टाइम्स में आपके पास स्कूल नाउ रीओपनिंग हो रहा है, सो टीचर्स, पेरेंट्स सभी लोग एक्साइटेड है कि नाउ लर्निंग्स विल हैपन एंड ऑल। सो IQ, दैट इज academics are important, as well as EQ, that is understanding your emotions, understanding others' emotions, respecting other emotions is also important. So this theory or on emotional intelligence, actually there is one famous book on this EQ, and that was written by Daniel Goleman. So this Daniel Goleman का book आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड हाउ टू बी ए इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनल क्वोशंट आपका कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देयर आर वेरियस थिंग्स, पर मैं ओनली फ्यू थिंग्स आई विल शेयर विथ यू। वन इज सेल्फ अवेयरनेस। नो योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर यू आर गुड एट, वेयर यू आर नॉट गुड एट। तो टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वेन एवर यू आर डीलिंग विथ स्टूडेंट्स, तो आप उनको सेल्फ अवेयर कैसे बने, हाउ टू फाइंड आउट योर स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपनी स्ट्रेंथ कैसे पहचाने, अपने वीकनेस कैसे पहचाने। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल चिल्ड्रन आर हैविंग गुड स्ट्रेंथ्स, समटाइम्स दे आर नॉट गुड टू, देयर आर सम स्टूडेंट्स who can be good at 2 subjects and weak at another 2 subjects. It may be possible. So that's, we have to accept it, we have to know it, and you have to become self awareness. ऐसे ही टीचर्स को भी मैं बताऊंगा कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बच्चों को ज़्यादा बताएं। एंड अनदर थिंग इज दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ अवेयरनेस आता है तो सेल्फ कंट्रोल भी ज़रूरी है। आज हमारे पास अगर मोबाइल है, बच्चे को मोबाइल दिया है, तो वो मोबाइल में क्या सर्च करना ये हमको आना चाहिए। इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें हैं, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, बट जो हमारी करियर में काम में आता है, जो हमको एकेडमिक्स में अपने को काम में आता है, ऐसी चीज़ें हम सर्च करना चाहिए गूगल में या अदर थिंग्स में। एंड दैट्स वाई सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये बहुत ज़रूरी है। अनदर थिंग इज, द थर्ड वन इज सेल्फ मोटिवेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इवन पेरेंट्स भी जानते हैं कि कोविड टाइम्स में काफ़ी जगह पे ऐसा है कि इकोनॉमी हैज़ गॉन डाउन, जॉब्स, बिजनेसेस पे भी इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। सो एट दैट टाइम अपने आप को, निराशा है वगैरह है, लेकिन अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखना। बच्चे भी, जैसे अभी 10th का या 12th का हम बात करें तो एग्ज़ाम्स वर कैंसल्ड and there are some other alternatives being thought by the government or education department. So in this time आप जो expect करते हैं and that you are not getting, whatever your goals are, sometimes ऐसा हो सकता है कि whatever you expect, whatever you aim, sometimes you are not able to get it. तो निराशा आती है। तो जब भी निराशा है, आपको ऐसा लगता है कि oh what will I do, you feel sad, at that time सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को कीप योर सेल्फ पैटिंग, अपने आप को एक, इसके लिए एक टेक्निक है जो डेनियल गोलमैन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशंस। नाउ व्हाट इज ऑटो सजेशंस? कीप टॉकिंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ। जैसे मिरर के सामने आप
कोई बच्चा होता है तो मिरर के सामने बोलेगा, अरे चिंटू डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल। आज इंग्लिश में कम मार्क्स आए तो क्या बात है, टुमारो आई विल ट्राई एंड आई विल गेट मोर मार्क्स। इससे अपने आप से बात करते रहो, कीप योर सेल्फ गुड एंड पॉजिटिव टॉक्स टू योर सेल्फ। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड गो अहेड। लाइफ में सेटबैक्स आते रहेंगे, लेकिन वही सेटबैक्स को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। एंड इसके लिए एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशंस। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक बहुत फेमस बॉक्सर था मोहम्मद अली। तो ये जो मोहम्मद अली है वो बॉक्सिंग रिंग में जाता था उससे पहले, जब भी उसकी इवेंट होती है उससे पहले, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग, सो वो प्रिपरेशन के टाइम पे ही वाज प्रैक्टिसिंग, ही वाज लर्निंग द टेक्निक्स एंड ऑल दैट वॉट एवर बॉक्सिंग ही हैज टू डू, तो ही वाज प्रैक्टिसिंग। अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ही वाज सेइंग कंटिन्यूअसली टू हिमसेल्फ, अपने आप को बताता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। नाउ प्रैक्टिस, हार्ड वर्किंग, उसके साथ साथ अपने आप को मेंटली भी वो कमांड देता था कि आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। एंड इसकी वजह से जब भी वो बॉक्सिंग रिंग में जाता था वो प्रूव होता था। तो अपने आप को जो तैयारी भी वो करता था एंड अपने आप को ऑटो सजेशन भी देता था। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज से आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। नाउ दिस इज माई स्मॉल मेंशन दैट IQ एंड EQ दोनों बैलेंस होना चाहिए। अपना इंटेलिजेंस भी है, साथ साथ इमोशनल क्वेश्चंस, मतलब अपने इमोशंस को समझो, गुस्सा आता है तो क्यों आता है उसको समझो, और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी जरूरी है। सो बी इमोशनली इंटेलिजेंट। एंड नाउ ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम व्हेन दिस academic year is starting, I wish all the students all the best. There are various ways to learning, so keep learning. And to teachers, आपको भी मैं just there is a message, keep yourself updated. Now the time has changed and now the students also have the access to various technology. So I request you to keep yourself updated, and there are various ways to motivate and to take test of the students. And parents, there is a small message, a small request for you that this small gadget it's inevitable, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न। सो आप अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ा जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, एक कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, कितना ये चीज़ यूज़ करे कितना नहीं करे। बिकॉज इसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो करियर अच्छी भी हो सकती है बच्चों की, अदरवाइज देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू जिस्मारिया मैम एंड ऑल द टीम मेंबर्स फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you very much. Dear Sir, we are so honored and privileged to have your thought-provoking message in this new academic year. Thank you so much, Sir. That was indeed motivating and extremely informative. Teachers are the torch bearers of knowledge. As we are beginning new academic year, teachers are requested to receive the lighted candle.
Dear students, you are requested to receive the lighted candle and blessings from your parents. Now let us join with our teachers in Teachment online platform. So my dear students, today as you are stepping into a new academic year, you are going to carry with you a ray of hope. Dear ones, wishing you a grace-filled and fruitful academic year ahead. Thank you.